تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایونٹ 5 فروری کو اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی جو حق خود ارادیت کی جو جنگ ہے، اسٹرانگ میسج دینے کے لیے پنجاب کے عوام کی طرف سے یہ چیف منسٹر صاحبہ کا ایک انیشیٹو ہے. کشمیر از ناٹ اے لاسٹ سبجیکٹ. جب تک ان کی یہ جو جنگ ہے آزادی حاصل کرنے کی، یہ جب تک اپنے انجام تک نہیں پہنچتی، تب تک تمام پاکستانی، تمام پنجابی، سندھی، بلوچی، KPK کے ہمارے سب لوگ کشمیری عوام کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہیں. آج کشمیری عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کریں گے. صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا کہ ماضی میں کشمیریوں کا ایک نام نہاد چیمپئن تھا. سب نے دیکھا کہ ان کے دورہ امریکہ کے بعد کشمیر کے ساتھ کیا ہوا. عالمی تنظیمیں اور ادارے سو رہے ہیں. عالمی برادری کو کشمیریوں کا بہتا خون نظر کیوں نہیں آتا؟ دنیا کو کشمیر کی جانب توجہ دلانے کی ضرورت ہے. پاکستانی قوم کشمیریوں کی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دے گی. ملکی دفاع کے لیے افواج پاکستان کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں. صدر مرکزی مسلم لیگ خالد مسعود سندھو نے کہا کہ مسئلہ کشمیر حل ہوگا تو پاکستان میں بدامنی ختم ہوگی. بڑھتی ہوئی دہشت گردی پاکستان کو مسئلہ کشمیر سے دور رکھنے کی سازش ہے. نیشنل کالج آف آرٹس میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پوسٹر نمائش کا انعقاد. وائس چانسلر NCA پروفیسر ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری کی خصوصی شرکت کی گئی. طلبہ اور فنکاروں نے تخلیقی پوسٹرز کے ذریعے کشمیری عوام کی جدوجہد کو اجاگر کیا. پروفیسر ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری نے کہا کہ نمائش کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظہر ہے. یوم یکجہتی کشمیر پر پنجاب پولیس کا سیکیورٹی پلان تشکیل. IG پنجاب نے کہا کہ یوم یکجہتی کشمیر پر سیکیورٹی ہائی الرٹ رہے گی. 11,000 سے زائد افسران اور اہلکار سیکیورٹی انتظامات پر مامور ہوں گے. کیمروں سے تمام سرگرمیوں کی نگرانی کی جائے گی. یہ گورنمنٹ 100 کچھ ووٹوں کے فرق سے بنی ہے، تو یہ 37 کی 37 آپ کی ہو بھی جائیں تو پھر یار یہ چھوڑے. یہ RTS کا جھگڑا ہم نے ڈالا، نظام کے اوپر پڑا. اس سے پہلے 4 سیٹوں کا حلقہ آپ نے ڈالا. اس سے پہلے میں نے پیپلز پارٹی کو ڈالتے دیکھا. وہ سارا ایشو اس سے پہلے مسلم لیگ میں کہیں سیسو اور زگ زیگ چلتا رہے گا. لیٹس بی فیئر آن ون تھنگ. I cannot preach what I have done. دہشت گردی کے خاتمے سے ہی ملک ترقی کرے گا. ہمیں ترقی کے لیے چین کے رول ماڈل کو اپنانا ہوگا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارت کا حامی ہوں. آئین پاکستان میں تمام طبقات کو مساوی حقوق دیے گئے ہیں. سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ناممکن ہے. پنجاب کو اقتصادی طور پر بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی صوبائی وزراء سے ملاقات میں گفتگو. خواجہ سلمان رفیق، بلال یاسین اور سہیل شوکت بٹ ملاقات کرنے والوں میں شامل. حکمران تحریک انصاف کے کارکنان پر فسطائیت سے گریز کرے. 8 فروری کو سب کچھ کرنے کے باوجود عوام نے PTI کو ووٹ دیا. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچھر کی گھن گرج. کہا کہ چیئرمین PTI کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، اس کو آن کیا. اگر حکومت مقصد ہوتا تو پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ملنے کو تیار تھی. تحریک انصاف کی 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کی تیاریاں. صدر PTI لاہور کی زیر صدارت اجلاس. شیخ امتیاز کی 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کے حوالے سے کارکنان کے ساتھ مشاورت. صدر PTI لاہور کی کارکنان کو احتجاج کی تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت. پنجاب اسمبلی میں پہلی مرتبہ ریجنل CPA کانفرنس کا انعقاد خوش آئند ہے. MPA سارہ احمد نے کہا کہ اسپیکر ملک احمد خان کی کاوشوں سے ریجنل CPA کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کانفرنس کے انعقاد کے لیے تعاون اور سپورٹ حاصل ہے. پہلی مرتبہ کانفرنس میں 22 ممالک کے پارلیمنٹیرینز شرکت کر رہے ہیں. ثقافت کے فروغ اور کسانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے احسن اقدام. وزیر اعلیٰ کا عالمی معیار کا ہارس اینڈ کیٹل شو کے انعقاد کا فیصلہ. 3 روزہ نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو میں شو کا حصہ بنے گی.
में सूरज ने आंखें खोल ली। हवाएं चलने से सर्दी का एहसास बढ़ गया। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का तनासुब 94% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं। मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। फिजाई आलूदगी ने लाहौर के बासियों का पीछा न छोड़ा। बागात का शहर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर बराजमान। एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 से तजावुज़ कर गया। रायवन रोड का इलाका आलूदा तरीन करार। जहरीली फ़ज़ा से मुख्तलिफ बीमारियां आम हो गई। माहरीन का आवाम को एहतियात का मशवरा। मुल्की क्रिकेट सीरीज और चैंपियन ट्रॉफी का मेला। महकमा दाखिला ने कज़ाफ़ी स्टेडियम के सिक्योरिटी ऑडिट के लिए खसूसी कमेटी बना दी। कमेटी कज़ाफ़ी स्टेडियम, एतराफ़, चेकिंग पॉइंट्स, पार्किंग एरिया का सिक्योरिटी ऑडिट करेगी। कमेटी 5 फरवरी को अपनी रिपोर्ट जमा। सुपीरियर फेस्ट 2025 रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान, MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक की खसूसी शिरकत। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात भी शरीक हुए। लड़कियों के 6, लड़कों के 3 हाउसेस ने मार्च पास्ट किया। पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोची और कश्मीरी कल्चर की आकासी की गई। खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए। बच्चों, खेल बहुत ज़रूरी है। आज के मेले का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि कैसे हम अपने ग्रेजुएट्स को सिखा सकते हैं टीम वर्क, आखिरी बॉल तक खेलना कैसे है और कैसे जीत को सेलिब्रेट करना है और हार के खड़े कैसे होना है, कभी गिव अप नहीं करना। सुपीरियर स्पोर्ट्स मेले ने तलबा के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी। तलबा ने खेलों के मेलों को 4 चांद लगा दिए। खेल जीत को कैसे बनाना और हार के बाद दोबारा कैसे खड़ा होना सिखाता है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का खिताब। कहा, आखिरी बॉल तक लड़ना फील्ड से ही सीखने का मौका मिलता है। हमें अपने हिस्से का दिया जलाना है। आप कौम का सरमाया है। कौम को आपकी ज़रूरत है। आप वादा करें, मेहनत करके वालिदैन और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। बाकी इसका जो क्रेडिट है वो माशाल्लाह हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, पिछले 30-35 साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे हम पाकिस्तान को सुपीरियर और सुप्रीम बना सकते हैं। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से उसी की रिफ्लेक्शन ये जो यहाँ पे 8-10 हज़ार बच्चे आपको नज़र आ रहे थे और बड़े डिसिप्लिन के साथ और बड़े माशाल्लाह एथिक्स के साथ, तो ये जो हमारा करैक्टर मास्टरी का प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, इससे पहले 3U1M और इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोप्रेन्योरशिप, तो ये सारा एक सीरीज़ है जो पिछले 25-30 साल से माशाल्लाह चेयरमैन साहब की क़यादत में उनकी पूरी टीम जो है वो ये सब कुछ कर रही है। सुपीरियर तालीमी मैदान के साथ स्पोर्ट्स में भी पहले नंबर पर है। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा कि ये चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की 35 साला मेहनत का नतीजा है। इन मेलों से तलबा हमारी सकाफत को बेहतरीन अंदाज में समझ सकते हैं। अगर आप आज अपने बच्चों में इंक्लूसिविटी प्रमोट करने की बात करें, अगर आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, अगर आज हम एथिक्स की बात करें, बर्दाश्त की बात करें और पाकिस्तान की बात करें, बिकॉज सारे प्रोविंसेस के कल्चर्स आज यहाँ रिप्रेजेंट हुए हैं। सो अ बिग हैंड फॉर द सुपीरियर ग्रुप फॉर डूइंग दिस ऑन। वज़ीर तालीम पंजाब की सुपीरियर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इनेकाद पर मुबारकबाद। राना सिकंदर हयात कहते हैं कि सुपीरियर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद खुश आइंद है। खेलों की सरगर्मियों से तलबा की पोशीदा सलाहियतें निखरती हैं। सुपीरियर स्पोर्ट्स फेस्टिवल से नया टैलेंट उभर कर सामने आएगा। पंजाब हुकूमत खेलों की सरपरस्ती की मुकम्मल निगरानी कर रही है। पूरे पंजाब में खेलों के इनेकाद से मौके दिए जा रहे हैं। सुपीरियर का तालीम से खेल के मैदान तक सेहतमंद सरगर्मियों के फ़रोग़ का मिशन। सुपीरियर फेस्ट का रंगारंग मेला। 100 मीटर रेस, शतरंज, कैरम बोर्ड और चाटी रेस के मुकाबले, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस के मुकाबले भी हुए। फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। मार्च पास्ट में विनर ट्रॉफी मुल्तान रोड कैंपस के कश्मीरी उड़ान हाउस के नाम रही।
सुपीरियर फेस्ट 2025 में सकाफत के रंग नुमाया पंजाबी धनक हाउस की शानदार एंट्री, मार्च पास्ट और पंजाबी कल्चर पेश किया। तालिबात के भंगड़े ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। फेस्टिवल में सिंधी सकाफत की झलक, शहजादे हाउस की ऊंटों के साथ एंट्री, खूबसूरत सिंधी रक्स पर धमाल ने समा बांध दिया। टाउनशिप कैंपस के हाउस ने भी सिंधी सकाफत की नुमाइंदगी की। ख्वा की सकाफत के रंग, जज्बा हाउस ने केपी कल्चर की नुमाइंदगी की। तालिबात ने खूबसूरत लिबास ज़ेब तन के इलाकाई रक्स पेश किया। तालिबात ने बलोच कल्चर की नुमाइंदगी भी की, सुर्ख रंग के खूबसूरत लिबास पहन। सुपीरियर स्पोर्ट्स मेले में हर सू सकाफती रंगों की बहार। तालिबात की जानिब से जश्न कलात की शानदार परफॉर्मेंस, घुड़ डांस ने इवेंट की रौनक बढ़ा दी। कश्मीरी उड़ान हाउस की जानिब से कश्मीर कल्चर की आकासी की गई। अनम उमन ने कश्मीरी उड़ान हाउस की क़यादत की। मेहमान खसूसी को तहाइफ पेश किए गए। कीमत में इजाफा, ट्रेन मुसाफिरों पर भारी पड़ गया। पाकिस्तान रेलवेज ने एक बार फिर मुसाफिर ट्रेनों के किराओं में 5% इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक किराओं में इजाफे का इतलाक सैलून सर्विस और तमाम आउटसोर्स ट्रेनों पर होगा। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलें सोलर पर मुंतकिल करने का फैसला। जेल हुकाम के मुताबिक 4.5 अरब रुपए से तमाम जेलों में सोलर सिस्टम की तनसीब की जाएगी। सोलर सिस्टम रवा माली साल में मुकम्मल करके ऑपरेशनल कर दिए जाएंगे। लाहौर रंग की खबर पर एक्शन, डॉक्टर्स का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। MDMS मामले पर हुकूमत की नजरसानी, MDMS पासिंग नंबर्स के 60% कर दिए। पंजाब में 450 आसामियां खाली थी। MDMS इंडक्शन के लिए पोर्टल दोबारा खोल दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के 4 सीनियर रजिस्ट्रार्स के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। डॉक्टर नाहिद अख्तर फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर गायनी तैनात कर दी गई। डॉक्टर जफर इकबाल मलिक को निश्तर यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए अबूरी मेरिट लिस्ट जारी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने 8,104 दरख्वास्तों गुजारों की मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी। मेरिट लिस्ट की बुनियाद पर उम्मीदवारों को मेडिकल कॉलेजेस अलॉट होंगे। पहली सिलेक्शन लिस्ट में MBBS का आखिरी मेरिट 80.3% रहने का इम्कान है। महकमा स्कूल एजुकेशन का तंबाकू नोशी के खिलाफ बड़ा इकदाम। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तंबाकू और निकोटीन की तमाम मसनूआत पर पाबंदी लगा दी गई। मनशियात की पाबंदी के खिलाफ तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला जारी कर दिया गया। इंटरमीडिएट में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा के एजाज़ में तकरीब। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। सूबाई वज़ीर तालीम का तीनों पोजीशन लेने वाले तलबा को 5, 3 और 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। कहा कि दुनिया की बदलती तरजीहात के मुकाबले के लिए नौजवानों में टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन की मुस्तकिली तैनाती न हो सकी। पीपल्स पार्टी और हुक्मरान जमात में बैठक के बावजूद चेयरमैन बोर्ड की तैनाती पर कोई इत्तेफाक न हो सका। कायम मकाम चेयरमैन बोर्ड के ओहदे की दूसरी बार तोसी का दौरानिया भी खत्म होने वाला है। एक्साइज डिपार्टमेंट लाहौर रीजन ए का एक भी ETO 60% रिकवरी का हदफ पूरा न कर सका। रीजन ए लाहौर की कारकर्दगी सिर्फ 50% रही। पिछले माह 60% का हदफ हर सूरत पूरा करने का हुक्म दिया गया था। डायरेक्टर मुश्ताक फरीदी ने तमाम ETOs को वार्निंग दे दी।